Hello. Are you listening to me? When there is so much of verses बहुत सारे वचन जब आ जाएं in one sermon, एक ही प्रचार में, it means इसका मतलब है God is talking to you परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं that it is very urgent. और बात करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। It's very urgent. ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। Hallelujah. हालेलुया। On urgent basis, I'm going to preach you today. On urgent basis. और इस आवश्यक जरूरत को मद्देनजर देखते हुए मैं आज आपके सामने प्रचार लेकर आ रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. 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 मुंडा प्रचार कर रहा है, बड़ी फटाफट जवाब दे रहा है। Hallelujah. तो जवाब सुनते रहिएगा। Alright. Topic that I have is आज जो विषय आज मेरे पास है, what is your standard when the world celebrate their confusion? आपका क्या स्तर है जब संसार अपनी दुविधा का उत्सव मना रहा है? Hallelujah. हालेलुया। I'll repeat once again. मैं एक बार फिर से दोहराता हूँ, What is your standard as a believer एक विश्वासी होने के नाते आपका क्या स्तर है when the world is celebrating their confusion? जब संसार अपनी दुविधा मना रहा है? Hallelujah. हालेलुया। Are you the celebrator क्या आप उत्सव मनाने वाले हैं or the spectator क्या देखने वाले हैं or the believer? क्या फिर एक विश्वासी हैं? Amen. Amen. Are you with me? क्या आप लोग मेरे साथ Are you हैं? listening to me? क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। When the world is celebrating what they do not know about it, और जब संसार उन चीजों का उत्सव मना रहा है जिनके बारे में वो नहीं जानता है, then who you are? तो आप लोग कौन हैं? This message is only for the believer. और ये संदेश केवल विश्वासियों के लिए है It will be little in parables, और ये थोड़ा बहुत दर्शन की बातें होंगी, दृष्टांत की बात होगी, so that you can understand it. ताकि इसे आप समझ सकें। And I know one thing, और मैं एक बात जानता when हूँ, I am going to talk like Jesus today, और जब मैं यीशु के समान आज बात करने जा रहा हूँ, like parables today, दृष्टांतों में, then you will surely understand. तो आपको समझ में जरूर आ Those जाएगा। who are the believers. Those who are the believers. जो लोग विश्वासी हैं, Amen. Amen. So the people who have come first time, जो लोग आज पहली बार आए हैं, they will receive what they can receive, वो ग्रहण कर पाएंगे जो ग्रहण कर but सकें। you will receive everything. लेकिन आपको सब कुछ मिल जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Now listen to this. अब इसे सुनिएगा। When the world is celebrating something, संसार कुछ मना रहा है। when you go out in the world, जब आप संसार में जाते हैं, when you see people doing something, और जब आप लोगों को कुछ करते हुए then who देखते you हैं, are? तो Then who you are? आप कौन हैं? Are you the celebrator too? क्या आप भी उनके साथ उत्सव मनाने वाले हैं? Are you also celebrating with the world? क्या आप भी संसार के साथ उत्सव मना रहे हैं? Are you also mixing with the world? क्या आप भी संसार के साथ मिल रहे हैं? What are you doing today? आज आप क्या कर रहे हैं? Who you are? और आप कौन हैं? Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you also going with them and telling them, oh, let me also celebrate with you, let me also have a dance with you? और क्या आप उनके साथ जाकर आप उनसे कहते हैं कि मैं भी आपके साथ उत्सव मनाना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं भी इसे मनाना चाहता हूँ? Or are you the spectator? या फिर आप किसी दर्शक हैं? You are just roaming on your terrace और आप अपने छत पर घूम रहे हैं बस, and you're just enjoying what people are doing. और आप उसका लुत्फ उठा रहे हैं जो लोग कर रहे हैं। Hello. हेलो। Someone say, God is talking to me. और कोई कहे परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. 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 Are you the spectator? क्या आप दर्शक हैं? And the third category, और तीसरी श्रेणी है, are you the believer? क्या आप एक विश्वासी हैं? Amen. Amen. Who you are? आप कौन हैं? What is your standard? आपका स्तर क्या है? What you are? आप कौन और क्या हैं? You have been coming to church. आप कलीसिया में आ रहे हैं? You are a believer. आप एक विश्वासी It's हैं। been 5 years. और 5 साल हो It's गए, been 10 और years. 10 साल हो गए It's हैं, been 30 और years. 20 साल हो गए Who हैं। you are? आप कौन हैं? God wants you to be a believer. परमेश्वर चाहते कि आप एक विश्वासी हो। God doesn't want you to be a celebrator. परमेश्वर नहीं चाहते कि आप उत्सव मनाने वाले हो। God doesn't want you to be a spectator. परमेश्वर आपको एक दर्शक बना हुआ नहीं देखना चाहते। But what you are, लेकिन आप क्या, वो परमेश्वर क्या चाहते हैं? He wants you to be a believer. वो चाहते हैं कि आप एक विश्वासी हो। Not only in church. सिर्फ कलीसिया में ही There नहीं, are some people, कुछ ऐसे लोग हैं they are only believer in the church. वो सिर्फ कलीसिया में ही विश्वासी
Jesus? क्या आप यीशु मसीह के साथ मिलने के लिए और उसके साथ बर्ताव करने के लिए आ रहे हैं? Or are you coming to Jesus for some condition? क्या फिर यीशु मसीह के पास आप कुछ शर्तों के साथ आ रहे हैं? You're telling him, आप उसे कहते हैं, if you bless my child, यदि आपने मेरे बच्चे को आशीष दी, I will come to church. मैं कलीसिया में आऊंगा। If you give me job, यदि आप मुझे नौकरी देते हैं, I will give you on Sunday. मैं आपको सारे रविवार दे दूंगा। If you give me this, हाँ, यदि आपने मुझे ये दिया, I will give that. मैं वो दे दूंगा। What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? What you can give to God? आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? Who is the man that the God even think about it? अब मनुष्य क्या है जो परमेश्वर के बारे में ऐसा सोच सकता है? Who is the man that God think about it? मनुष्य क्या है कि परमेश्वर उसकी सुधी ले? Who is man that God even think about it? परमेश्वर क्या है जिसकी स्तुति परमेश्वर ले? Are you alive? क्या आप लोग जीवित हैं? Are you sleeping? क्या आप लोग सो रहे हैं? I hope you're not sleeping. मुझे उम्मीद है आप सो नहीं रहे। Church, कलीसिया, you are the light of the world. आप जगत की ज्योति हैं। And if you become dark, और यदि आप अंधकार हो गए, then there is no light in the world. तो संसार में कोई ज्योति नहीं रह जाएगी। Every one of you आप में से सभी लोग who is sitting जो here यहाँ पर बैठे हुए हैं, is responsible वो जिम्मेदार है for the people, उन लोगों के लिए those who are going to hell. जो नरक में जा रहे हैं। Why? क्यों? Because Jesus said, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, you are the light of the world. तुम जगत की ज्योति हो। Wherever you go, जहाँ कहीं भी तुम जाओ, I will go. मैं जाऊंगा। Wherever you go, जहाँ तुम जाते हो, I will shine. मैं वहाँ पे चमकूंगा। Is Jesus shining from you? क्या यीशु मसीह आपके द्वारा चमक रहे हैं? Are you the light of the world? क्या आप जगत की ज्योति हैं? Are you maintaining your light? क्या आप अपनी ज्योति को बरकरार रखे हुए हैं? Jesus said you are the salt of the earth. यीशु मसीह ने कहा, तुम पृथ्वी की नमक हो। What does that mean? और इसका क्या मतलब है? You are the taste of this world. आप इस संसार के स्वाद हैं। If you lose your salt, यदि आपने अपने नमक को, अपने स्वाद को खो दिया, then how you will be salty again? तो फिर से आपका स्वाद कैसे आएगा? फिर से कैसे आपको नमकीन किया जाएगा? Church, कलीसिया, wake up. जाग जाइए। It is a time. ये समय है। I know Christmas is coming. मैं जानता हूँ क्रिसमस आ रहा I है। can give you good messages. मैं आपको अच्छे संदेश दे सकता I हूँ। can appreciate you. मैं आपको प्रोत्साहित कर सकता But हूँ। I felt in my spirit लेकिन मुझे मेरी आत्मा में महसूस हुआ and it was so broken. और ये बहुत तोड़ देने And वाला। I wanted it to give it to you. और मैं इसे आपको देना चाहता What था। I wanted to give it to you. और मैं आपको क्या देना चाहता था? That you must know that you are the light of the कि world. आप ये जान जाएं कि आप इस संसार की ज्योति हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। What are we doing? और हम क्या कर रहे हैं? Jesus got mad when the people changed their mentality about the church. और यीशु मसीह बहुत पागल हो गए, बहुत गुस्से में आ गए जब लोगों ने कलीसिया के बारे में अपनी मानसिकता को बदल दिया। Why are you coming to church? आप कलीसिया में क्यों आ रहे हैं? To worship Him? उसकी आराधना करने के To be लिए, changed? बदल जाने के Or लिए, you're coming just to pass the time? फिर समय को यूं ही बिताने के लिए आप आ रहे हैं? What is your mentality? आपकी मानसिकता क्या है? Hallelujah. हालेलुया। Those people came to church to deal with Jesus. और वो लोग यीशु मसीह के पास कलीसिया में आए ताकि वो यीशु मसीह के साथ बर्ताव कर सकें, उनसे मिल सकें। They can deal with God. वो परमेश्वर से व्यवहार कर सकें। They can have some business with God. और वो परमेश्वर के साथ कुछ व्यवसाय कर सकें। And Jesus got angry. और यीशु मसीह को गुस्सा आ गया। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Hallelujah. हालेलुया। Even यहाँ तक कि your body is the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Amen. Hallelujah. What are you doing with your body? अपने शरीर के साथ आप क्या कर रहे हैं? Where are you using your body? और अपने शरीर का इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं? Are you using your body to abuse somebody? क्या अपने शरीर का इस्तेमाल आप किसी को गाली देने के लिए कर रहे हैं, किसी को अभद्र भाषा देने के लिए कर Are रहे you हैं? using your body to take some toxic substances? क्या आप अपने शरीर का इस्तेमाल कुछ रासायनिक पदार्थों के लिए कर रहे हैं? You are taking some liquor or some smoking? आप धूम्रपान कर रहे हैं, आप दारू पी रहे हैं? What are you doing with your body? अपने शरीर के साथ आप क्या कर रहे The हैं? Bible says बाइबल कहती है, you are the temple. आप मंदिर हैं। Not this wood is the temple. ये लकड़ी कोई मंदिर नहीं है। Not this wood is the temple. ये लकड़ी मंदिर नहीं है। Not your clothes is the temple. आपके कपड़े मंदिर नहीं है। But you yourself, लेकिन आप खुद भी, you are the temple. आप
full of demons. नहीं, वरन यह है कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। Amen. 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 It is written in your Bible. ये आपकी बाइबल में लिखा हुआ है। Somebody tell your neighbor, wake up. और अपने पड़ोसी से कहिए कि जाग जाइए। Wake up. जाग जाइए। Please wake up. Please, मैं आपसे निवेदन Because करता if you हूँ sleep today, कि यदि आज आप सो गए, you will miss something. आप कुछ खो देंगे। Tell everyone, wake up. और सब कहिए, जाग जाइए। Wake up, wake up, wake up. Wake up. जाग जाइए। Give a crazy praise to the Lord. Hallelujah. Now listen to this. आप इसे सुनिएगा। Paul is saying, पौलुस कह रहे हैं, no, I imply that what pagan sacrifice we offer to demons. नहीं, वरन यह नहीं कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। There are people in the world, संसार में लोग they हैं, are sacrificing. वो बलिदान कर रहे हैं, Sacrificing their life. अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं, Sacrificing their children. अपने बच्चों का बलिदान कर रहे हैं, Sacrificing their life. अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं। But Paul is saying, लेकिन पौलुस कहता है, all this sacrifice is not for God, but for demons. ये सारे बलिदान परमेश्वर के लिए नहीं दुष्ट आत्माओं के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। They fast, but their fast is in vain. और वो उपवास तो लेते हैं लेकिन उनके उपवास व्यर्थ है। Hallelujah. हालेलुया। They worship, but their worship is in vain. आराधना तो करते हैं लेकिन उनकी आराधना व्यर्थ है। Why? क्यों? They do not know the truth. वो सत्य में नहीं जानते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And what is saying? और उसके बाद क्या कहा गया? You cannot drink the cup of the Lord and the cup of the demon together. तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से एक साथ नहीं पी सकते। There are some people कुछ ऐसे लोग हैं that share the both thing together. वो दोनों को एक साथ बांटते हैं। They share the cup of the demon वो जो है दुष्ट आत्मा के कटोरे को बांटते हैं and they share the cup of the Lord. और वो प्रभु के कटोरे को भी बांटते हैं They share the sweet और वो मिठाइयाँ बांटते हैं and they share the cake. और उसके साथ वो केक भी बांटते हैं। It is not possible. ऐसा होना मुमकिन नहीं है। It is not possible. मुमकिन नहीं है। Hallelujah. Stop it. इसे बंद कर It दीजिए। is rubbish. और ये बकवास है। The one thing that God hates. और ये ऐसी चीज है जिससे परमेश्वर नफरत करते The हैं। one thing that God hates. एक ऐसी चीज जिससे परमेश्वर नफरत करते हैं। Any sin can be forgiven on this earth. संसार का इस पृथ्वी का हर एक पाप माफ किया जा सकता है। Any sin can be forgiven. हर एक पाप कोई भी पाप माफ किया जा सकता है। But लेकिन one sin एक पाप cannot be forgiven. की माफी नहीं है। If you say to the living God that there is, I have some other father. और यदि आप उस जीवित परमेश्वर से कहें कि मेरे और भी पिता हैं। Hallelujah. हालेलुया। You cannot tell your father that I have another father. आप अपने पिता से नहीं कह सकते कि मेरे और भी पिता हैं। In the same way, ऐसे ही there is one God एक ही परमेश्वर है who is in जो heaven, ईश्वर है। who came in the form of Jesus. यीशु मसीह बनकर इस पृथ्वी पर आया। You cannot compromise on it. और इसमें आप समझौता नहीं कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। But there are some people लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं in the church, they know the वो truth. सत्य को जानते They हैं। are the वो believers. विश्वासी हैं। It's been 10 years. 10 साल हो गए It's been हैं। 5 years. 10 साल हो गए They हैं। are lying वो झूठ बोल रहे and हैं they are sharing the cup. और वो कटोरा बांट रहे They हैं। are sharing the cup of the Lord वो प्रभु के कटोरे को and they are sharing the cup of the demon. आत्माओं के कटोरे को एक साथ बांट रहे And हैं। I will have a news for such people. और मेरे पास उन लोगों के लिए एक समाचार है। You are inviting the wrath of God in your life. आप अपने जीवन में प्रभु के क्रोध को आमंत्रित कर रहे हैं। I don't care, it is a grace time. मैं इस बात की परवाह नहीं करता ये अनुग्रह का समय है। I don't care about it. मुझे इसकी परवाह नहीं That है it is a grace time. कि ये अनुग्रह का समय है। You know what? क्या जानते हैं You क्यों? know what? क्या जानते हैं क्यों? The grace could not save Noah. क्योंकि
God? क्या आप लोग परमेश्वर के आगे मान Or रहे are हैं? you taking the disadvantage of the grace? क्या फिर आप अनुग्रह का फायदा उठा रहे Hello, हैं? hello, hello, I'm talking to somebody. मैं किसी से बात कर रहा हूँ। Listen, listen, listen. सुनिएगा। What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? God is talking to you. परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं That I am a jealous God. कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। I cannot compromise on it. मैं इससे समझौता नहीं कर सकता हूँ। Israel was destroyed many times because of one reason. इस्राएल बहुत बार बर्बाद हुआ और उसका सिर्फ एक ही कारण था। They tried to share the cup of the Lord and the cup of the demons together. क्योंकि उन्होंने प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे को एक साथ बांटने और पीने की कोशिश की। There is a lot of things happening in India. भारत में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। Lot of things coming. बहुत सारी चीजें आ रही हैं। What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? Where are you? आप कहाँ पर हैं? Where are you? आप लोग कहाँ हैं? Let me tell you. मुझे आपको बताने दीजिए। The people who have come first time and the people who have been coming for a very long time. और जो लोग पहली बार आए हैं और जो लोग अभी भी आ रहे हैं, या You will बहुत ask- समय से आ रहे हैं, You will ask one question. आप एक सवाल पूछेंगे, Who is God? परमेश्वर कौन है? And I have one answer. और मेरे पास एक जवाब है, Word is God. परमेश्वर है। The Gita, the Quran, the Bible, all the scripture in the world say the word is God. गीता, बाइबल, कुरान, इस संसार के सारे ग्रंथ सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि वचन भी परमेश्वर है। If you ask me, यदि आप मुझसे पूछें, who is God? अब परमेश्वर कौन है? I will not say Jehovah is God. मैं नहीं कहूँगा यहोवा परमेश्वर है। I will not say Jesus is God. मैं ये नहीं कहूँगा यीशु मसीह परमेश्वर है। Because all the books in the world इस संसार की सारी किताबें say one thing. एक ही बात कहती है, Word is God. वचन परमेश्वर है। And this word answer, और ये वचन जो है, you will find this answer in the Bible. आप इस जवाब को बाइबल में ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं। The word was with God. वचन In the beginning there was word. आदि में वचन था And the word was with God. और वचन परमेश्वर के साथ था। And the word was God. और वो परमेश्वर था। Hallelujah. And Jesus of Nazareth is the word. Jesus is the word. यीशु मसीह वचन है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. Am I talking to somebody? My dear people, grace cannot save you. अनुग्रह आपको नहीं बचा सकता है Grace could not save Judas Iscariot. और अनुग्रह यहूदा इस्करियोती को नहीं बचा सका। He was with the grace. वो अनुग्रह के साथ था He was walking with the grace. और वो अनुग्रह के साथ चला He करता was था। talking with the grace. वो अनुग्रह से बात किया करता था। Judas Iscariot, यहूदा इस्करियोती such a rich man on the planet. और इस ब्रह्मांड में इतना भागा मनुष्य इतना He was with the grace. वो अनुग्रह के साथ था He distributed the 5,000 fishes and loaves. और उसने 5,000 लोगों को मछली और रोटी बांटी थी। But लेकिन that grace, वो अनुग्रह, that Jesus वो यीशु मसीह could not save that man. उस व्यक्ति को नहीं बचा पाया। You know why? आप जानते हैं You क्यों? know why? आप जानते हैं क्यों? Because he was disobedient. क्योंकि वह आज्ञा न मानने वाला मनुष्य था। Where are you? आप कहाँ पर हैं? What is your standard? आपका स्तर क्या है? How long you will lie? और कितने लंबे समय तक आप झूठ बोलते रहेंगे? How long? कितने लंबे समय तक? How long? कब तक? Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? The cup of the demon दुष्ट आत्मा को कटोरा and the cup of the Lord और प्रभु का कटोरा cannot mix वो together. एक साथ कभी भी मिल नहीं सकते हैं। Cannot mix together. वो एक साथ नहीं मिल सकते हैं। The cake cannot mix with anything else. केक किसी और के साथ नहीं मिल सकता है। You know, I want to tell you something. और देखिए मैं आपको कुछ बताना I want चाहूँगा। to tell you something. मैं आपको कुछ बताऊंगा।
380 people could not receive the Holy Spirit, 380 लोग पवित्र आत्मा को नहीं पा सके, but only 120. लेकिन सिर्फ 120 उसे पा It सके। was not grace that helped them to receive the Holy Spirit. और वो अनुग्रह नहीं था जिसने उन लोगों की मदद की जो पवित्र आत्मा को पाने के लिए। When Jesus rose again, जब यीशु मसीह दोबारा जी उठे, when he rose again, वो दोबारा जी उठे, Paul says पौलुस ने कहा, he showed up to 500 वो people 500 लोगों को नजर आया, and he told the 500 और people, 500 लोगों से उसने कहा, do not go out of Jerusalem, यरूशलेम से बाहर ना जाना, wait for the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का इंतजार करो। 380 people could not receive that Holy Spirit. 380 लोग पवित्र आत्मा को नहीं पा पाए, Not because of grace, अनुग्रह के कारण नहीं, but because they were adamant and disobedient. लेकिन वो सीधी थे और आगे ना मानने वाले थे। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! हालेलुया। They were disobedient. और आज्ञा ना मानने वाले But लोग थे। 120 people, लेकिन 120 लोग they obeyed Jesus उन्होंने यीशु की आज्ञा को and they माना received the Holy Spirit. और उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। Hallelujah! हालेलुया। Many people have not received the Holy Spirit. बहुत सारे लोगों ने अभी तक पवित्र आत्मा नहीं पाया है। You are thinking that God will give me one day. आप उम्मीद करते हैं कि एक दिन तो परमेश्वर मुझे जरूर देंगे। I have a news for you. बात आपके लिए समाचार है। You will never receive the Holy आपको Spirit कभी भी पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। if you rely on the grace. यदि आप अनुग्रह में निर्भर रहे, One thing you have to do, आपको एक काम करना है। you have to obey God. आपको परमेश्वर की आज्ञा माननी है। Hallelujah! हालेलुया। Hallelujah! हालेलुया। What is sin? पाप क्या है? What is sin? पाप क्या है? What is sin? पाप क्या है? Sin is not abuse. पाप ये नहीं कि आप गाली दें, Sin is not that you are raping. और पाप ये नहीं कि आप किसी का बलात्कार कर रहे हैं। Sin is disobedient. पाप ये है कि आप जब आज्ञा नहीं मानते हैं, When Adam disobeyed God, जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, he committed a sin. उसने एक पाप किया। My dear friend, मेरे प्रिय दोस्तों, disobedience is a sin. और आज्ञा न मानना ही पाप है। Stop lying. झूठ बोलना बंद करें। Stop lying. झूठ बोलना बंद करें। It is enough. आज बहुत हो चुका है। I have a news for you. मेरे पास आपके लिए समाचार है। Let's go to the book of Acts chapter 5. और आइए हम प्रेरितों की काम की किताब उसका 5वां अध्याय निकालें। Book of Acts. प्रेरितों की काम की किताब, Book of Acts प्रेरितों की काम की किताब chapter 5. उसका 5वां अध्याय, Let's read there. और वहां पे हम पढ़ेंगे। I'll show you certain things. मैं आपको कुछ बातें वहां दिखाऊंगा Let's see what they are doing there. और देखते हैं वो वहां पर क्या कर रहे हैं। Stop lying. झूठ बोलना बंद करें। Stop lying. झूठ बोलना बंद कर दें। Can you tell me what is the heading on the 6th chapter? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 5वें अध्याय में के जो विषय है, विषय सूची क्या है? Ananya and Sapphira. But in my Bible, लेकिन मेरी बाइबल में the topic is जो विषय है, lying to the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से झूठ बोलना, That is the topic. ये विषय है। Now listen to this अब इसे सुनिएगा very carefully. बड़े ध्यान से। Church, कलीसिया, welcome. जाग जाइए Listen, listen, listen. और सुनिएगा Everyone, सब लोग। did you get this message? क्या आपको ये संदेश समझ में आ रहा है? You got the chapter? क्या आपको ये अध्याय मिल गया? Acts प्रेरितों की chapter काम 5. की किताब उसका 5वां अध्याय, Now I'll read certain portion and you just take care of it. और मैं कुछ भाग को पढ़ूंगा और आप उस पर ध्यान लगाइएगा। Verse 1st and 2nd and 3rd. पहली आयत, दूसरी आयत और तीसरी आयत। But a certain man named Ananias with Sapphira, his wife, sold a possession, and he kept back part of the proceeds, his wife also being aware of it. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? Go ahead. अनन्या नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? That's it. इतना ही। Now listen अब सुनिएगा very carefully. बड़े ध्यान से। This is story ये कहानी talks about two people, दो लोगों के बारे में बात करती है, husband and wife. पति और पत्नी। The husband was Ananias और जो पति थे उनका नाम था हनन्या,
अनन्या and his wife is Sapphira. और उनकी पत्नी सफीरा, What they did? उन्होंने क्या किया? They sold one possession, one land. उन्होंने भूमि का एक भाग बेचा And what they did? और उन्होंने क्या किया? They took some money for themselves उन्होंने अपने लिए कुछ पैसा रख छोड़ा and gave some money to the disciples. और कुछ पैसा उन्होंने प्रेरितों को दे दिया, चेलों को दे दिया। But now listen to this. लेकिन आप इसे सुनिएगा। The verse second. और दूसरी आयत, Read it. और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी। बोलिए, ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। एक बार फिर से बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। My Bible says his wife also being aware of it. और मेरी बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उसकी पत्नी भी इस बात से को जानती थी। Now listen. अब इसे सुनिएगा। Neither you can hide anything. और आप नहीं कुछ छुपा सकते हैं। Just like Peter, और पतरस के समान ही, because Peter knew that wife also knows this, क्योंकि पतरस जानता था कि पत्नी को इसके बारे में पता है। so he repeated his question once again. उसने फिर से अपने सवाल को दोहराया Repeated intentionally. और जानबूझ के उसने अपने सवाल को फिर से दोहराया And asked the wife, और पत्नी से पूछा, did you really get this much money? क्या सचमुच में तुझे इतना ही पैसा मिला? तो मुझे भी करने दीजिए पास्टर। I will go for Hannah. मैं मेहंदी के लिए जाऊंगा या जाऊंगी, Because people do it in the world. क्योंकि संसारिक लोग इसे करते हैं, Let me do it. तो मुझे भी करने दो। Is it according to Christ? क्या ये मसीह के अनुसार है? What your Bible is talking about? और आपकी बाइबल किसके बारे में बात कर रही है? Go and read it. इससे जाकर पढ़िए। If you have a doubt, यदि आपको संदेह है, please come and ask me. आकर मुझसे पूछिए। Anybody in the church, कलीसिया में कोई भी, if you have a doubt यदि आपको शक है या संदेह है in anything, किसी भी बात पर, किसी भी you चीज have पर, a freedom. आपके पास आजादी है। Don't afraid of me. मुझसे मत डरिए Then what I will think about you. कि मैं आपके बारे में क्या सोचूंगा। You have a right to directly come down and ask me. आपके पास अधिकार है कि आकर आप सीधा मुझसे पूछे। Some people say we don't want to do it, but because of our tradition we do it. कुछ लोग कहते हैं हम इसे करना तो नहीं चाहते, लेकिन हमारी परंपराएं ऐसी हैं, इसलिए हमें करना पड़ता है। Because of the tradition. क्योंकि परंपरा ऐसी है। And what people will think about us. और हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे? What my friend will think about मेरे us. दोस्त इसके बारे में क्या सोचेंगे? If they will send me a message of celebration, यदि वो उत्सव का कोई मुझे मैसेज कर दे, well, what should I reply? तो मुझे उसका क्या जवाब देना चाहिए? You're getting the parables. आप तो दृष्टांत कर रहे हैं You're getting in your head. और आप इसे आपकी बुद्धि नहीं उतर रहा है। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Amen. Amen. Now listen. अब सुनिएगा। Oh, pastor, ओ पास्टर, we don't want to do it. हम इसे नहीं करना चाहते, But our children, लेकिन हमारे बच्चे they are वो small. छोटे-छोटे They हैं, are very वो small. बहुत छोटे हैं अभी, They are adamant. वो बहुत जिद्दी हैं, They want to do it. वो इसे करना चाहते हैं And because of them, और उनके कारण we celebrate. हम मनाते हैं, We do it. हम उसे करते हैं, We disobey God. हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। Then what are you teaching your children? तो आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? What are you teaching? आप क्या सिखा रहे हैं? Because in Deuteronomy क्योंकि व्यवस्था विवरण में and chapter 6, verse 6 to 8 says, और 6वें अध्याय उसका 6 से 8 इस प्रकार से कहता है, what it says? और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, हाँ। वह तेरे मन में बनी रहे, किसमें बनी रहे? मन में बनी रहे। आगे और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर, किसको समझाना है? Tell me once again. तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर, किसको? बाल बच्चे मतलब बहुत छोटे छोटे, बड़े नहीं, जैसे नहीं बोल रहा युवकों को। He is not talking about okay, teach your youth. और वो ये नहीं कहते कि जवानों को सिखाओ, But he is saying, लेकिन वो कह रहे हैं your small children, अपने छोटे बच्चों को teach them, उन्हें सिखाओ tell them, और उन्हें बताओ mind them. और उन्हें आप सिखा करो। Next. समझाकर सिखाया करना, Yes. और घर में बैठे हाँ। मार्ग पर चलते, घर में बैठते वक्त, मार्ग में चलते वक्त, लेटते वक्त, उठते वक्त इनकी चर्चा किया करना। इनकी चर्चा किया करना। आप किसकी चर्चा करते हैं? फिर से पढ़ना, किसके टाइम? घर में बैठे हुए, बोली घर में बैठे हुए, टीवी नहीं देखना, एक साथ चर्चा करना कि परमेश्वर क्या कहता है। मार्ग पर चलते, मार्ग में चलते वक्त, लेटते
लेटते लेटते वक्त सोने के टाइम पर, उठते और जब उठ रहे हैं तब भी इनकी चर्चा किया करना। की चर्चा। Don't give me the rubbish answer that oh we do it because of our small children. कभी मुझे बकवास जवाब ना दें कि हम ये सब सिर्फ इसलिए करेंगे हमारे बच्चे छोटे छोटे हम लोग करते हैं। You will go to hell and they will also go to hell. आप तो नरक में जाएंगे और वो भी आपके साथ नरक में आएंगे। So the problem is, तो परेशानी जो है, it's not that they are adamant. ऐसा नहीं कि बच्चे जिद्दी हैं, It's you are adamant. वो आप हैं जो जिद्दी हैं। I cannot please you guys. मैं आपको खुश नहीं कर सकता हूँ, I have to please God. मुझे परमेश्वर को खुश करना है। If I please you, यदि मैं आपको खुश करने लगूं, then we all go to hell. तो हम सब मिलकर एक साथ नरक में जाएंगे। But I have to tell you the real word of God. लेकिन मुझे आपको परमेश्वर के वचन का सत्य ज्ञान देना है। Or you say, oh pastor, this is the Old Testament. Something tell me from the New Testament. आप कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर ये सब कुछ तो पुराने नियम से, मुझे कुछ नए नियम से बताइए ना। Then let's go to the New Testament. तो ठीक है, हम नए नियम में चलते हैं। Let's go to the book of Matthew chapter 15. और हम मत्ती की किताब निकालेंगे, उसका 15वां अध्याय देखेंगे और 30वीं आयत। Matthew chapter 15 verse 3. मत्ती उसका 15वां अध्याय और 30वीं आयत। Write it down everything. और सारी चीजों को आप लिख लें। Because after this you will be the light of the world or you will be the darkness of the world. क्योंकि इसके बाद या तो आप जगत की ज्योति बन जाएंगे या जगत का अंधकार बन जाएंगे। He answered them, and why do you break the commandments of God for the sake of your tradition? उसने उनको उत्तर दिया कि तुम भी अपनी रीतियों के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। किसने उत्तर दिया? यीशु मसीह ने। और क्या कहा? अपनी रीतियों की वजह से, अपने फालतू के रीति रिवाज की वजह से और अपने दिखावे की वजह से तुम परमेश्वर की आज्ञा को क्या करते हो? टालते हो। Oh, can I have a stall? क्या मैं ये स्टॉल लगा सकता हूँ? I'll sell something मैं कुछ बेचूंगा and I'll get some money. और मुझे कुछ पैसा मिलेगा। I'll do it, pastor. मैं करूँगा पास्टर। Can you give me permission? क्या आप मुझे इसकी अनुमति दे सकते हैं? You go for the stall आप स्टॉल के लिए जाइए and you see how God used that money to destroy. How Satan used that money to destroy. देखिए शैतान कैसे उस पैसे का इस्तेमाल बर्बादी के लिए करता है। Your God who is in heaven, आपका परमेश्वर जो स्वर्ग में है, He is able, वह योग्य है and He has one good point in Him. और उनकी एक अच्छी खासियत है, He created everything from zero. उन्होंने सभी चीजों की रचना मात्र शून्य से की है। From zero. शून्य से। He doesn't need anything. और उन्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं He है। doesn't need your plan. उन्हें आपकी योजना की जरूरत नहीं है। He doesn't need your mind. आपकी बुद्धि की उनको जरूरत नहीं When है। He wants to bless you, वो आपको आशीष देना चाहते हैं। He can bless you वो आपको आशीष दे सकते हैं without anything. किसी भी चीज की Because जरूरत the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, because the Bible says, क्योंकि बाइबल इस प्रकार कहती है, He can hear without ear. वह बिना कानों में सुन सकता है। He can see without eyes. Hallelujah. He can talk without mouth. और वो बिना मुंह के बोल सकता है। What does that mean? ऐसा क्या मतलब है? Whatever He wants to do, He can do वो it. जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं। Amen. Hallelujah. And Jesus said, और यीशु मसीह ने कहा है, you are breaking the law, the commandment of God because of your tradition. अपनी रीतियों के कारण तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को अवमानित कर रहे हो। Hallelujah. Oh, pastor, my family will tell me, my relatives will blame me, my this will tell me, my dad will tell me, so let me do it. और मैं कैसे पास मेरी ना मेरा परिवार मुझे ऐसा कहेगा, मेरे रिश्तेदार मुझे दोष लगाएंगे, मेरे दोस्त कहेंगे, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, मुझे करने दीजिए ना बात। You cannot break the commandment of God because of your tradition. अपनी रीतियों के कारण आप परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं तोड़ सकते हैं। Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? Am I talking to somebody? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? There is silence in the church. आज कृष्ण मेरा शांति है I like this. और मुझे
today is the day when we are going to change. आज वो दिन है जब आप बदल जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Are you getting something today? क्या जब कुछ मिल रहा है? Church, क्रिश्चियन, are we alive? क्या हम जीवित हैं? Hallelujah. हालेलुया। Yes, your God can do it. जी हाँ, आपका परमेश्वर कर सकता है। Let's go and read one more verse and I will finish it here. और आइए एक और आयत को हम इसे हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। Okay, we will read 2-3 more verses. और हम 2-3 आयतें और पढ़ लेंगे। Let's go to the book of Hebrews chapter 10 verse 26. और हम इब्रानियों की किताब उसका 10 और 26 आयत पढ़ेंगे। Let's see what is written here. और देखेंगे वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Hebrews chapter 10 verse 26. इब्रानियों की किताब उसका 10-26। For if we go on sinning deliberately, after receiving the knowledge of the truth, there no longer remains a sacrifice for sins. क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। Once again, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यीशु मसीह को प्राप्त करने के बाद, यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। कोई आपके लिए नहीं आने वाला जो आपको उससे छुड़ा सके। जानबूझ के। The Bible is saying if you sin deliberately. यदि तो हम जानबूझकर पाप करें। I want to tell you today. मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। By mistake, sin in the world is very few and it's very rare. और संसार में गलती से कोई पाप हो जाना बहुत ही अनहोनी सी बात है, बहुत कम ऐसा होता है। It is very possible और ये बहुत नामुमकिन सी बात है। that you committed sin because by mistake. और गलती से आपने कोई पाप कर दिया। But लेकिन there are sin in the world संसार में बहुत सारे ऐसे पाप हैं which is well planned. जो कि पूरी योजना के तहत कर किए जाते हैं। सही समझ में? दुनिया में गलती से जो पाप हो रहे हैं, किसी के भी द्वारा, आपके द्वारा, मेरे द्वारा, परमेश्वर के राज्य में उनकी संख्या 0 के बराबर है, क्योंकि बहुत से कम लोग हैं जो गलती से पाप कर दे रहे हैं। पर योजना बनाकर कि ऐसा ऐसा करेंगे और ऐसा ऐसा होगा, ऐसे पापों की संख्या बहुत बड़ी है। हनन्याह एंड सफीरा दे प्लान हनन्याह और सफीरा ने योजना बनाई that they will lie to the Holy कि Spirit. वो पवित्र आत्मा से झूठ बोलेंगे। And heaven also planned और स्वर्ग ने भी योजना बनाई when they lie, कि जब वो झूठ बोले, we will kill them. हम उसे मार डालेंगे, हम उन दोनों को मार डालेंगे। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Some people will say, okay, let's rest for 2 Sunday. It is so dangerous now. We'll wait for 2 Sunday and then we'll go to church. और कुछ लोग सोच रहे हैं इस वक्त मन ही मन में कि हम 2 रविवार अब वेट करेंगे, उसके बाद से हम चर्च में आना शुरू करेंगे। It's going to be dangerous. ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला Going है to be harmful. और हमें चोट भी बचा सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Sinning deliberately. जानबूझकर पाप करना, Deliberately. जानबूझकर, Keeping hatred for somebody deliberately. जानबूझकर किसी की नफरत को पालना। Hallelujah. हालेलुया। Disobeying somebody deliberately. किसी की आज्ञा न मानना, वो भी जानबूझकर, Getting angry deliberately. जानबूझकर क्रोध करना। Oh, by mistake I got angry. ओ, गलती से मुझे गुस्सा आ गया। I have never seen that. मेरा ऐसा कोई मतलब तो नहीं था। I have never seen that मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। in my whole life. मैंने अपने पूरे जीवन में That somebody got angry by mistake. गलती से किसी को यूं ही गुस्सा आ गया। No. नहीं। You get angry because of your own conscience. आप गुस्सा करते हो, आपको गुस्सा आता है क्योंकि आपने जानबूझकर से किया है। You planned it very well. बड़े तरीके से आपने इसकी योजना बनाई। Amen. Amen. एक बात कहना चाहता हूं, प्रकाशन, गलती योजना बना के नहीं होती, पर पाप योजना बनाकर ही होते हैं। गलती तो हो जाती है, पर पाप हो नहीं जाते, पाप किए जाते हैं। Amen. क्या मेरे साथ है? पाप क्या होते हैं? किए जाते हैं। और जो नए लोग आए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, पाप आपके शरीर में, दिमाग में नहीं है, पाप आपकी जुबान में नहीं है, पाप आपकी आंखों में नहीं है, पाप हमारे खून में होता है। पाप
खून के अंदर पैदा होता है। पाप और बीमारियां और शाप, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी तक चलती रहती हैं। इसीलिए पाप गलती से नहीं होता। आप क्यों सोचते हैं कि मैं बार बार क्यों झूठ बोलता हूं? क्योंकि ये खून का मामला है। मैं बार बार ये शराब क्यों पी लेता हूं? खून में प्रॉब्लम। मैं बार बार ये गलती नहीं करना चाहता हूं पर फिर भी मुझसे हो जाती है। क्यों? ये दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है, ये खून की प्रॉब्लम है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो पूछता है पहले शुगर आपके परिवार में किसी को थी? क्यों? क्योंकि खून में चलती हुई आ रही है। आपके पिताजी भी गरीबी में मर गए, आप भी गरीबी में मर गए। क्यों? शराब की प्रॉब्लम है। वो शराब अभी तक टूट नहीं रहे जो खून में चले आ रहे हैं। और शराब बहुत भयंकर तरीके से काम करते हैं। गलती कोई और करता है और सजा पूरी पीढ़ी को भुगतनी पड़ती है। आप कोई गलती करते हैं, आपकी 10 पीढ़ियां उस चीज को भुगतती हैं। आप तो चले जाते हैं आराम से, कोई बात नहीं, मैंने लूटा खाया, मर्डर किया और चला गया। पर जो आने वाले पीढ़ी है, परमेश्वर न्यायी है, वो उनसे बदला लेता है। क्या आप मेरे साथ हैं? और इसीलिए पाप खून में था। अगर खून में नहीं होता तो यीशु मसीह अपना दिमाग दे देता और दुनिया ठीक हो जाती। अगर जुबान में खून पाप होता तो अपनी जुबान दे देता और हम ठीक हो जाते। पर पाप खून में था। और मेरे प्रियो, खून को अगर शरीर से निकालेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? आंख निकालोगे तो मरोगे नहीं, जुबान काट देंगे तो मरोगे नहीं। पर अगर खून निकाल दिया सारा, खत्म। इसीलिए परमेश्वर को मनुष्य बनकर जमीन पर आना पड़ा ताकि वो अपना खून बहा सके। खून बहा सके ताकि हर एक बीमारी से, हर एक श्राप से, हर एक पाप से आप और मैं आजाद हो सके। पर अगर हम अभी भी जानबूझकर पाप कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। इस चर्च में ऐसा नहीं होगा। आपको मेरे दृष्टांत सबको समझ में आ गए। इस चर्च में केक के साथ और कुछ मिक्स नहीं होगा। और मैंने किसी को देख लिया, वो उसका आखिरी दिन होगा। वो चाहे 10 साल का विश्वासी हो, चाहे वो 15 साल का विश्वासी हो। और मैंने आपको अगर दुनिया में मिलते हुए देखा, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, यहां पर खड़े होकर वो आखिरी दिन होगा। मुझे नहीं पता बाहर की गली शॉप में क्या होता है, पर इस चर्च में ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। और ये सबके लिए, चाहे कोई भी हो। पतरस से झूठ नहीं बोल रहे थे। किससे झूठ बोल रहे थे? आमीन। हमारा परमेश्वर इस योग्य है कि हम पूरे दिल से, पूरे प्राण से, पूरे मन से उसको महिमा दें। उसने वो किया है हमारे लिए। जो आप भाग रहे हैं बाहर, आप मुझे ये बताइए, कौन है जो आपके लिए सूली पर मरा? कौन है जिसने आपके लिए वो कोड़े खाए? कौन है जिसने आपको शिफा और चंगाई दी है? कहां भाग रहे हैं? Are you getting my message today? Church, I'm talking to you. Wake up. Hallelujah. Your God is a great God. He is able. He is worthy. Hallelujah. And one thing he cannot see, that his children will leave him and going somewhere. Hallelujah. He cannot see
Take them out. उसे बाहर निकाल दीजिए। Finish. खत्म। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Do you agree with me? क्या आप मेरे साथ सहमत हैं? Is it right? क्या ये सही है? Is it right? क्या ऐसा करना सही है? Amen. Amen. We cannot lie to God. हम परमेश्वर से झूठ नहीं बोल We सकते। cannot hide from Him. हम उसे छुपा नहीं सकते हैं। Hiding is lying. और छुपाना भी पाप ही होता है और वो भी झूठ बोलना होता है। Do not play with Him. परमेश्वर के साथ ना खेले। Amen. Amen. That is what I want to tell you. और यही मैं आज आपको बताना And चाहती you will be blessed. हूँ कि आप आशीष होंगे। Love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your wisdom. आपने प्रभु परमेश्वर को अपने पूरे प्रेम से, अपने पूरे मन से, अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम करें And He will bless you. और वो आपको आशीष देंगे। I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता if हूँ you love Him with all your heart, with all your mind, with all your soul, यदि आप परमेश्वर से अपने पूरे प्राण, अपने पूरे मन, अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम करेंगे, there is no way that He cannot bless you. ऐसा कोई तरीका, कोई रास्ता नहीं जिससे वो आपको आशीष न दे। Amen. Amen. You will surely be blessed. वो जरूर आपको आशीष देगा And you will surely grow. और आप जरूर बढ़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Don't give Him excuses. उसे बहाने ना दें। Because of my children, मेरे बच्चों के कारण I am doing this. मैं इसे कर रहा हूँ। Because of my tradition, मेरी रीतियों के कारण I am doing this. मैं इसे कर रहा हूँ। Because of my relatives. मेरे रिश्तेदार के कारण Be careful. और बड़े सचेत रहिए Let them know that you are saved. और उन्हें जानने दीजिए कि आप बचाए गए Let हैं them know that you are the disciple of Jesus. और उन्हें जानने दीजिए कि आप यीशु मसीह के चेले हैं। Don't compromise. समझौता ना करें। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ हैं। Are you with me?